بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام، آج 1 نومبر ہے اور دن ہے جمعہ کا۔ دیکھیے، اب ہر گزرتے دن کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کی عدلیہ میں باقیات دم توڑتی جا رہی ہیں۔ یعنی وہ تمام لوگ جو قاضی فائز عیسیٰ کے کہنے پر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کمان سنبھالنے کے بعد، جسٹس یحییٰ آفریدی کے پہلے چند سخت فیصلوں کی وجہ سے ان تمام لوگوں نے گھر جانا شروع کر دیا۔ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر سارا منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ کے ججز، یعنی جو قاضی گروپ تھا، اس گروپ کے ججز کے مستعفی ہونے کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت ہو گئی ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے کمان سنبھالنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے حیران کن خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ بہت بڑا زبردست فیصلہ عمران خان کے حق میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ خاموشی کی بھی ایک مکمل زبان ہوتی ہے اور وہ زبان بڑی خطرناک ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد جس طرح جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب خاموش ہیں، جس طریقے سے جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف پچھلے 4 دنوں سے پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پوری کنٹروورسیز بنائی جا رہی ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی کے خاموش رہنے کی وجہ سے ہی وہ تمام لوگ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے علاوہ دیگر جوڈیشری میں قاضی فائز عیسیٰ گروپ کے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں نے مستعفی ہونے کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھیے، پہلا پلان تو یہ تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہی نہ، وہ تو مجبوری میں، کیونکہ آئینی ترمیم کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے پہلے 3 سینئر ججز کا نام پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کو بھجوایا جانا تھا۔ حکومت کا خیال یہ تھا کہ یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے انکار کریں گے تو جسٹس امین الدین خان جو چوتھے نمبر کے جج ہیں، جو قاضی گروپ کے سب سے متحرک جج ہیں، ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے گا۔ یحییٰ آفریدی صاحب کو جب چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کیا گیا، اگلے دن وہ تمام تر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو ملے، خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کو ملے۔ جب تمام تر ججز نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو اس منصب کو سنبھالنے کا کہا، تجویز دی، یحییٰ آفریدی صاحب کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد دوسرا پلان یہ تھا کہ حکومت یحییٰ آفریدی پر زور ڈالے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینیورٹی لسٹ یحییٰ آفریدی کے بعد شروع کی جائے، یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ جج ہوں، ان کے بعد آنے والا جج دوسرے نمبر کا سینئر پیونی جج ہو، ان کے بعد آنے والا تیسرے نمبر کا جج ہو، یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کو مائنس کر دیا جائے۔ یہ حکومت کا پلان تھا، اس نظام کا پلان تھا۔ یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ جو پہلی بیٹھک ہوئی تھی، جس بیٹھک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس بیٹھک میں کچھ طاقتور شخصیات بھی موجود تھی، ایوان صدر کے اندر یہ ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی سینیورٹی لسٹ آپ کے بعد شروع ہوگی۔ اس کا مطلب کہ آپ چیف جسٹس ہیں، جسٹس امین الدین خان سینئر پیونی جج ہوں گے، دوسرے نمبر کے سینئر جج، اور جسٹس جمال خان مندوخیل یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ گروپ کے بڑے متحرک جج ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے لگائے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیرے جج ہیں، ان کو تیسرے نمبر کا سینئر پیونی جج بنا دیا جائے۔ اس اعتبار سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہوگی وہ بھی انہی تینوں ججز پر مشتمل ہوگی، جو آئینی بینچ بنے گا وہ بھی یہ تینوں جج، یعنی جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، قاضی گروپ کے ججز جو ہیں وہ آئینی بینچ کو بھی ڈیسائیڈ کریں گے۔ لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جب 26 اکتوبر ہفتے کی صبح 11:30 بجے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، جو پہلا انتظامی فیصلہ کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی واپسی کی، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سینیورٹی لسٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری کی، جس میں ٹاپ پر جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام ہے،
दूसरे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम है और तीसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम है। यानी सीनियोरिटी लिस्ट उसी तरह शुरू हुई जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू होनी चाहिए थी। तो इस निज़ाम का वो दूसरा प्लान भी नाकाम हुआ और काजी ग्रुप के लोग मुश्किलात में आ गए। फिर मैंने आपको कल ये खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट इजलास से पहले एक इजलास हुआ था जिसमें आईनी तरमीम को टेकअप करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जस्टिस याह्या अफरीदी को तजवीज़ दी थी। सिर्फ दो जजेस ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हमें 26वीं आईनी तरमीम को नहीं छेड़ना चाहिए। उन दो जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे। अगेन वो दो हीरे जो काजी फायज ईसा ग्रुप के थे। अब जबकि पहले 4-5 दिनों के अंदर इस निज़ाम को समझ आ गई, काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया में बैठी हुई बाकियात को समझ आ गई कि अब हमारी दाल नहीं गलनी। अब जस्टिस याह्या अफरीदी हैरानकुन फैसले करना शुरू हो गए। अब आप देखिए ना कि सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाला फैसला हैरानकुन नहीं है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतजामी कंट्रोल जस्टिस याह्या ने जस्टिस मंसूर को दिया। फिर सबसे बढ़कर एडीआर, वो आर्बिट्रेशन की कमेटी, वो डिस्प्यूट वाली कमेटी जिस कमेटी की सरबराही से काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को हटाया था और जस्टिस मंसूर अली शाह को हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई थी और सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह को आर्बिट्रेशन कमेटी से नहीं हटाया था, उसी दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रिसर्चर वापस ले लिया था। उसी दिन जस्टिस मंसूर अली शाह का जो ड्राइवर था, जो लाहौर से मंसूर अली शाह साहब के साथ इस्लामाबाद आया था, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो ड्राइवर भी अचानक वापस ले लिया था। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को तंग करने की कोशिश की थी काजी फायज ईसा ने और आर्बिट्रेशन कमेटी की सरबराही भी ले ली थी। तो याह्या अफरीदी साहब ने पिछले 12 घंटों के अंदर वो कमेटी की सरबराही भी जस्टिस मंसूर अली शाह को वापस दी। अब वो तमाम जजेस जो काजी ग्रुप के हैं, जिसमें सरे फहरिस्त अमीनुद्दीन खान है, दूसरे नंबर पर जमाल खान मंदुखेल हैं जो 5वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, ये सरे फहरिस्त 3 लोग हैं जो काजी माइंडसेट के हैं। इनमें से 2 तो ऐसे हैं जो बलूचिस्तान से आए हुए हैं, यानी जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। इन 2 जजेस ने कई दफ़ा निजी महफिलों में यह भी कहा है कि क्योंकि हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए हैं, यानी हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान से है और काजी फायज ईसा का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, तो हमारी ये रवायात हैं कि हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, हम अपने बड़ों का कहना मानते हैं, हम आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, हम अपने बड़ों की इज्जत है, यानी हमारी रवायात हैं कि हमने अपने से बड़े की इज्जत करनी है। अब काजी फायज ईसा क्योंकि सीनियर जज थे इन दोनों से, इस वजह से ये दोनों जस्टिफिकेशन देते फिरते थे इस्लामाबाद की निजी महफिलों में कि काजी साहब क्योंकि हमारे बड़े हैं और बलोचों की ये रवायत है कि वो अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, इसलिए काजी साहब जहां खड़े होंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन अब जस्टिस काजी फायज ईसा के ग्रुप के ये तमाम लोग जब बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं, तो इन तमाम लोगों ने मुस्ताफी होना शुरू कर दिया है या मुस्ताफी होने पर गौर शुरू कर दिया है। क्योंकि पहली उम्मीद तो ये थी ना कि शायद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब किसी अहम कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बिठा देंगे, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सपुर्द कोई अहम जिम्मेदारी लगा देंगे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान को कोई अहम जिम्मेदारी मिल जाएगी। अब पहले 3 बड़े फैसले जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने किए, वो तीनों बड़े फैसले मंसूर अली शाह साहब के हवाले से हैं, वो तीनों बड़े फैसले मुनीब अख्तर साहब के हवाले से हैं। यानी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने सिर्फ काजी फायज ईसा को जवाब नहीं दिया, इस निज़ाम को भी जवाब दिया कि काजी ग्रुप के लोगों का मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है बदलिया में। जितनी आइन की धज्जियां उड़नी थी, आइन को पामाल होना था, कानून तबाह होना था, वो हो चुका। अब मजीद मैं कम अज कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये टॉलरेट नहीं करूंगा। इसी वजह से हालांकि ये जो एडीआर कमेटी है, इस कमेटी के अंदर 2 मेंबर और हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और जस्टिस शाहिद वहीद साहब, उन दोनों को इस कमेटी के अंदर रखा गया, काजी ग्रुप का एक भी जज नहीं रखा गया। तो ये क्लियर मैसेज था उन लोगों के लिए कि अब आपकी जगह नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पिछले चंद घंटों के अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के
तगड़े फैसलों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पूरा ये मंजरनामा तब्दील कर दिया है। इसी वजह से ये खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं कि अमीनुद्दीन खान हो, और ये सिर्फ मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक नहीं है, ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी है, ये मामला मातहत अदालतों का भी है। आपने देखा ना, कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की मां बहन एक कर दी और कहा कि इसके कारनामे हमने साइफर केस के अंदर देखे हुए। तो वो तमाम जजेस जो काजी ग्रुप के थे, काजी के साथ इस निज़ाम के सहूलतकार बने हुए थे, उनके ऊपर सख्त वक्त आ चुका है, वो फंस चुके हैं। इसी वजह से उन्होंने घर जाना शुरू कर दिया है। दूसरी खबर की तफसील बताता हूं। देखिए, अब आप इसको खुशगवार तब्दीली कहें, हैरानकुन तब्दीली कहें या कुछ भी कहें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अचानक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। यानी ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार दरखास्त जमा करवा रही थी कि जनाब, जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान को सहूलियात नहीं दी जा रही, इमरान खान की अपने बेटों से बातचीत नहीं करवाई जा रही, इमरान खान अपने वकला से नहीं मिल सकते, इमरान खान वकला से मिल भी जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी लीडरशिप से मिल भी लें अगर अडयाला जेल में, तो उनको सियासी गुफ्तगू नहीं करने दी जाती। यानी ये कर्नल साहब बैठे हुए हैं जो ये तय करते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी लीडरशिप की गुफ्तगू क्या होगी। जहां पर कोई सियासी गुफ्तगू होना शुरू होती है वहां पर मुलाकात खत्म करवा दी जाती है। तो पिछले चंद घंटों के अंदर हैरानकुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी स्टैंड हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इमरान खान के हक में फैसले सुनाना शुरू कर दिए हैं। पहला फैसला जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब ने सुनाया। उन्होंने ये कहा कि जनाब, ये जो सियासी गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी आयद की गई है अडयाला जेल में, इस फैसले को कलअदम करार दिया जाता है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये पाबंदी लगाई थी, जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, और जस्टिस आमिर फारूक साहब का तो खैर आपको पता ही है। जस्टिस एजाज सरदार इसहाक खान साहब ने सियासी गुफ्तगू ना करने का जो फैसला था उस पर उसको कलअदम किया और भरपूर इजाजत दी कि इमरान खान अपनी पार्टी लीडरशिप से मिल सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात पर गुफ्तगू कर सकते हैं, कोई भी सियासी मामला हो, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उनको इजाजत है कि वो किसी किस्म की भी गुफ्तगू कर सकते हैं। दूसरा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है कि जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान को वो तमाम तर सहूलियात दी जाए। पहले जस्टिस सरदार इजाज खान ने कहा था कि व्हाट्सएप कॉल हो या कुछ भी किया जाए, अदालत को सिर्फ इसके ऊपर हतमी रिपोर्ट जमा करवाई जाए कि इमरान खान की अपने बेटों से बैरून मुल्क एक हफ्ते के अंदर कितनी दफ़ा बातचीत करवाई जाती है। पहले तो ये बहाना बनाया जा रहा था कि जब सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं वहाँ पर फ़ोन की सहूलियात ख़त्म कर दी गई हैं, तमाम तर जो वहाँ पर कैदी हैं मौजूद उनसे ये फ़ोन की सहूलियात ले ली गई हैं। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि हर सूरत में इमरान खान की अपने बेटों से एक हफ्ते में 2 दफा बात करवानी है। जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान को सहूलियात देनी है। एक्सरसाइज मशीन इमरान खान को चाहिए, वो भी मिलनी चाहिए। इमरान खान को बाकायदा तौर पर वॉक के लिए एक खास जगह मुख्तस की जाए। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी आपको तब्दीली नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमान की तब्दीली का असर है। या यूं कह लीजिए कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पहले 5-6 दिनों के जो तगड़े फैसले हैं, जो एक ऑप्टिक्स हैं कि अब याहिया अफरीदी साहब काजी की तरह कमजोर चीफ जस्टिस नहीं है, वो निजाम के आगे झुकने वाले नहीं है। उनके पहले 4-5 फैसलों से कम कम ये मैसेज जरूर गया है अदलिया के अंदर। निजाम को जो गया है वो तो गया है, अदलिया के अंदर ये मैसेज गया है कि अब हमारा चीफ तगड़ा है। अब हमारा वो चीफ नहीं है कि अगर हम इसको कोई शिकायत करेंगे, अगर हम इसको कोई खत के जरिए बताएंगे कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इदारों की हमारे फैसलों में मुदाखलत हो रही है, तो ये चीफ खामोश नहीं बैठेगा, ये कुछ ना कुछ करेगा। मैंने शुरू में एक जुमला बोला था कि खामोशी की जुबान बड़ी खतरनाक होती है, और याहिया अफरीदी साहब अपना हल्फ उठाने के बाद से लेकर अब तक खामोश हैं। और वो खामोशी का जो पैगाम है ना, वो इस्लामाबाद वालों ने बड़ा सख्त लिया है। इसी वजह से काजी ग्रुप के लोग बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। बहरहाल मैं इंशाल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।